Hello, what is microfinance, and on that basis, what skill develop? Yes, come on. No one remember what we have learned yesterday? Yes. Microfinance are organizations of financial institutions that provide loans and allowances to entities which cannot access the banking system for various reasons. Hmm. I'm just asking something. Just review why what we learned yesterday. That is okay, but it's your topic now. So we have seen 2-3 cases also, right? Yes or no? Yes, ma'am. Then what? Wait a minute. Service for the market. Okay. So today just we share you a video of value chain financing. Okay, please watch, prepare, and then give me a feedback what you understand regarding that value chain financing. It's a part of unit 1. Okay, micro finance institutions we have seen yesterday. Let's start. Value chain. A value chain is a chain of activities that a company operating in a specific industry performs in order to deliver a valuable product or service for the market. Value chain finance. The term value chain finance refers to the flows of funds to and among the various links within the value chain. It refers to both internal, conventional, and external, emerging concept forms of finance. Internal value chain finance is financing that takes place within the value chain, such as when a supplier of inputs or a buyer provides credit to a farmer. External value chain finance is financing from outside the chain made possible by value chain relationships and mechanisms. For example, when a bank pursues a loan to a farmer based on a contract with a trusted buyer/value chain partner. Why value chain financing? In order to spur growth from relatively low-risk lending, Kochhalla Bank has been exploring avenues in value chain financing, VCF, which may allow the bank to not only expand its customer base and build a healthy loan portfolio but also drive growth in areas which have hitherto remained untapped. The main idea behind value chain financing is to bridge the gap between unexplored markets and financial institutions. Win-win for all. Farmer bank VC partner access to finance. Quality inputs at doorstep. High quality seed, higher yield, less input cost. Free of cost technical advisory services. Secure sales buyback agreements. Reduced grading for different end users. Bank. Large untapped markets. Growth opportunity.
minimum operations cost, lesser credit risk, almost guaranteed repayments. VC partner, quality produce at reasonable price, scaling up opportunity, consistent supplies, registered farmers, addressing the needs of various high-end/retail market segmentation, employment/entrepreneurship creation, suppliers, collection center, fresh marts, micro franchises, etc. Win-win for all, farmer access to large markets/franchises, free packaging and transportation, no commission to RT/middleman, alternate cropping, potato replaced tobacco in Swabi and Mansura. Target segment, these will target customers who are in relation with value chain partner, VCP, organization. This relationship of the prospective borrowers with the VC partner will be in the form of registered growers, suppliers or end users. Value chain financing will cater to the financing needs of the following: certified/registered growers/suppliers of either public or private agri-based organizations of repute, primary/secondary dairy milk suppliers, artisans, craftsmen, entrepreneurs and small traders involved either in supply/manufacturing of raw material or finished goods, end users of technology and energy solutions, educational institutions, schools, colleges, vocational training centers. Value chain model. Value chain lending process flow. AC opening of VCP and suppliers with Gable. Sharing of farmers. Database with Gable. Due diligence and appraisal by Gable. Customers account opening at Gable branch. Loan processing and disbursement. Amount transfer to VCPAC for seed and inputs. Payment to supplier by VCP. Input distribution to farmers by VCP. Packaging, transportation and selling of produce to end user. Payment by end users to VCP and Cable AC. Cable loans, settlement of Indiana borrowers by VCP. Transfer of remaining amount in borrowers deposit AC. Process ends. Agreement. VW, Cable and VCP. Value chain lending process flow. Connecting agro value chains CAV. Yes. Now tell me what you learn from this video. What do you feel? Yes. Yes. Come on. Am I audible to all of you? Yes or no? Yes, ma'am. Then what you learn from this? Value chain financing about What it is? Yes, very good. What it is? Correct. बोलो बोलो. हेलो, आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपका, बोलो ना. ma'am, it's a flow of fund to all related chain factors Good. like bank or other like farmers, and we see like other terms. Yes, correct. Anyone? Anyone? No one have idea? Or no one want to share it?
लेट्स पिक. सिर्फ एक ही को समझा? व्हाट अबाउट अदर्स? हेलो, निकिता, आर यू देयर? Okay. So yes, correct. That is value chain finance, and it is what actually? What actually? Let's pick. Maybe it's a flow of fund to other chain related factors like farmers and banks and VC partners. Yes, n number of departments are there, right? So this is the value chain finance. Okay, so we go through syllabus. It's a value chain finance. We have seen what it is actually. Okay, so now yesterday what we have seen, just elaborate, and then we'll start our next unit. Okay, so microfinance institutions. Yes. So microfinance institution, which I have learned yesterday, what it is, a number of million, billion MSME started, go through microfinance, a number of skills developed, a number of employees and villagers and all people get a new job. They get an opportunity to develop their skills, right? Because of the microfinance institutions, right? We have seen a number of we called it's a roadmap. Okay, how they provided the loans, how other banks and institutions merged and started their own business regarding to this. Now MSME, SMA, to what kind of role they played, and how they create opportunity to others through that finance. Then we have seen some kind of models, and number of institutions are working here. We have seen some case, Rangde case, right? And on that basis, he or she get an success, right? Then case B, microcredit facility, how, what is the facilities there and how they success in that case. Mudra scheme, okay, Mudra scheme give a not only give, but it's a connected n number of people, right? Even also value chain finance, right? So that is actually work, right? Wait a minute. That is actually work. So if you want to start any kind of business or regarding what we say, regarding any financial institutions, okay, if you connect if any financial institution, so you start, right? You get an idea. Now yesterday we have seen how we create and develop our skills, and on that basis how we uh, how to become a successful in that particular business, right? So today we have seen uh, second unit, and it's a microfinance, right? So what is sorry, small finance. Yesterday we have seen microfinance, and second unit is a small finance. So what it is, a small, what it is small finance? Yes, what it is small finance bank? Anyone? Small finance bank. Don't be afraid. अगर गलत हुआ तो चलेगा, but let's speak ना at least, right?
Yes. Okay. So before that we have seen financial inclusion, right? Financial inclusion on street. What happened? Actually, why it's not sharing? I don't know. Have you seen this PPT? Yes, ma'am. Yeah. So fintech, it comes and a number of opportunities to join fintech and on that scheme, financial inclusion scheme. So through this, but a lot of people say it's a failure. It's not failure, but some kind of scheme. We are not preparing the go through a scheme and number of ideas and what we say knowledge in Indian peoples, but due to some lack of knowledge or some kind of yeah, maybe financial background की वजह से भी they may fail, but it's a good. But State Bank of India, it's a create a micro enterprise. Just second unit we have started. So financial inclusion of street vendors and promotion of micro enterprises. How it is. So first we seen एक second. Okay. Yeah. So what is financial inclusion first? Okay. So financially including person from all strata into the mainstream banking system. It's a banking system and number of schemes and number of opportunities to investing in a bank, right? So any person who have opened an account in a bank, that means a person have right to open any or sorry, a person have right to invest money in bank scheme, whatever the scheme are, FD, RD, then gold, and number of schemes. Even if even a person want to open his or her business through MSME or any other way, so they have get an opportunity to do it. Now financial inclusions index was launched in 2018. It comes in 2018 based on 4 dimensions. What it is: branch penetration, deposit penetration, credit penetration, and insurance penetration. Got it? So financial inclusion comes in 2018 and it's in 4 dimension. It is a branch penetration, deposit penetration, credit penetration, and insurance penetration. Means 4 sectors uh, which are included in include in financial inclusions, right? So this is the index will 3 measurement dimensions. It's access to financial service, usage of financial service, and quality, right? Means what it is exactly. If you want to open any branch through bank, right? So there is a quality of work, quality of product you have to serve. If we're talking about 5 to 10 years, before 5 to 10 years, today's to before 5 to 10 years, there is no facility, right? So a number of people want to go bank, deposit their money, and withdraw their money, right? Individually you have to visit the bank, okay, any transaction, for any transaction. But nowadays it's a digitization and you may do your work at home, right? Any transactions also at your home. So financial inclusions provide a quality of work after means coming years, okay, and especially after pandemic. It's a really creative, innovative work, okay, within a minute, within a second. So you, so your time is not waste, right? You have get a time, your time is saving, right? Because of that inclusion. So index will have 3 measurement dimensions. There are 3 dimensions: access of financial service, usage of financial service, and quality. That
is matter. And the Digital India initiative, payment banks and small finance banks are playing a pivot role along with bank in bridging the financial gap, right? And it is easily to get in data. What happened now? Even as a research scholar, if you went to bank and asked them, sir, I'm a research scholar of so and so college, and I need a data for my research. So they denied to give a data, because any bank, SBI never give, but any bank never give that any kind of data to you, because it's a confidential data. But due to this digital platform, it easy to get an data, because bank nowadays, bank, any financial institution, even bank also published their financial statement to in newspaper. So, and if you check their reports and what we say, websites, so there you will be getting data regarding whatever, especially the data is revenue, income, interest rate, schemes especially. So they everywhere allowable. So it's easy for you to prepare your SIP project, but you make effort seriously to work it, right? आपको बहुत ही seriously work करना है. That's why you will get a quality of work, right? So any financial banks are there, they play a major role. A number of microfinance institutions connected to each other and work hard regarding that, right? They provide a number of facilities to villagers, rural, urban, and everywhere. So the gap जो था बैंकों के बीच में, यहाँ से डाटा नहीं आ रहा था, वहां से डाटा नहीं आ रहा था, तो it will get easily, right? So that is the major development. Now finance to street vendor. How we finance to street vendor, जिनका street का business है, जो चाय वाले, पानी पूरी वाले, जो भी है street vendors. So how finance to street vendors? Mostly rely on personal saving to invest in their personal, social and professional areas. Everyone, बैंक को पता है कि सब लोग इन्वेस्ट करते हैं और सबके पास अकाउंट्स है. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके सेविंग अकाउंट के बेस पे, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी आ गई ना, तो सेविंग अकाउंट के माध्यम से उनको कनेक्ट किया. एंड ऑन दैट बेसिस, आफ्टर कनेक्शन, उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई ना कि ये पर्सन यहाँ पे बिजनेस करता है, पैसा आएगा तो वो वहीं पे डालेगा, राइट? तो ऑन दैट बेसिस पे उनका इन्वेस्ट होने लगा, और कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेस पे उनको पर्सनल लोन देने लगे. जैसे अभी मान लीजिए एक पानीपुरी वाला है, उसका अगर बेसिक डेली जो बिजनेस है रोज का 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए तो होगा ही, है ना? उसका रॉ मटेरियल और उसका रोज का जो है वो डिडक्ट हो गया. अगर वो एवरीडे 500 रुपीज अगर सेव करता है बैंक में, या 1000 रुपीज अगर वो सेव करता है बैंक में, तो बैंक को पता चल जाता है कि इसका इनकम 1000 मतलब मंथली कितना हो गया, 20 और 25,000, है ना? तो ऑन दैट बेसिस पे बैंक उनको क्या कर रही है, पर्सनल लोन्स दे रही है, राइट? सो ये हो गया एकदम फूड का बिजनेस. तो एन नंबर ऑफ बिजनेस है, जैसे बैंक उनको सेविंग अकाउंट के थ्रू लोन प्रोवाइड कर रही है. वर्क ऑन टर्नओवर बेसिस एंड ऑफन अवेल रिकर्स टू हाई इंटरेस्ट लोन फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स. तो इनका ये स्टेटमेंट ये हो रहा है, दे रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैंक की तरफ से हमें, हमारा सेविंग अकाउंट्स का जो स्टेटमेंट होता है, तो ऑन दैट बेसिस पे बैंक हमको लोन ऑफर कर रही है ना, कि नहीं आपका ये अच्छा है, आपको इसमें स्कीम मिलेगी, आपको उसमें स्कीम मिलेगी, एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो हाई रिपेमेंट कैपेसिटी बट एब्सेंस ऑफ कोलैटरल एंड फर्म डोमिसिलियरी स्टेटस रेस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, राइट? अभी ठीक है, वो तो बेचारा स्ट्रीट पे बिजनेस कर रहा है, उसके पास ना घर है ना उसके पास कोई बिजनेस है, मतलब कुछ नहीं है. तो कोलैटरल नहीं होने की वजह से, मतलब सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से बैंक उसको ज्यादा लोन नहीं दे सकती, है ना? क्योंकि उसका अता पता नहीं है, सिर्फ उसका बिजनेस है, उसके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, मंथली 25 से 30 हजार रुपए उसका अकाउंट में जमा होता है, ये बैंक को पता है. बट आज की डेट में अगर एन नंबर ऑफ बल्क में अगर उसको लोन देना है, बट उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रीट पे बिजनेस कर रहा है
है ना, सुबह आता है अपना स्ट्रीट पे जो भी है वो अपना दुकान लगा के बैठ जाता है, और उसका वो जो स्ट्रीट पे बिजनेस कर रहा है उसको टैक्स वगैरह थोड़ी ना पे करना है, वो आता है अपना लोगों को ये करके चला जाता है, बाकी जो भी इश्यू हो गया आई डोंट नो। बट हाई रिपेमेंट कैपेसिटी, अगर उसने किसी चीज के लिए अगर लोन मांगा तो बैंक को सोचना पड़ेगा कि दे कि नहीं, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है ज्यादा। हाँ, अगर उसके पास ज्यादा पैसा हो जाए, अगर वो एफडी निकाल लेता है या फिर कहीं इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाल लेता है बड़े अमाउंट की, तो फिर उसे लोन मिल सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे अगर आपका 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का अगर पॉलिसी है, तो वो आप मतलब 3 साल के बाद, पॉलिसी निकालने के 3 साल के बाद आपको लोन मिल सकता है। दैट इज द मैटर। ठीक है, सो ये है कि वर्क जो होता है वो टर्नओवर, बैंक इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो टर्नओवर के बेस पे लोन देती है। मेरे पास अगर मेरा रोज का सैलरी मान लीजिए 30-35 हजार रुपए है, और अगर मुझे लोन चाहिए तो बैंक मुझे पहले पूछेंगे आप कहाँ रह रहे हैं, आईडी प्रूफ क्या है ना, और आपके पास सिक्योरिटी क्या है। लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है ना, मैं 30,000 मंथली कमाती हूँ, उसमें से मैं क्या मतलब जो भी खर्चा वगैरह निकाल के 20 और 25,000 मेरे बचते हैं, वॉट एवर, राइट। सो ऑन दैट बेसिस पे बैंक एग्री नहीं होगी, एटलीस्ट मुझे 3 to 4 years कंटिन्यू करना होगा देन। बट इनके लिए भी बैंक ने क्या स्कीम निकाली है, लेट्स सी। So challenge associated with the financial inclusion of street vendor, then जितनी भी ये थी कि हमें इनको ट्रस्ट करके, इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनके लिए जो कुछ करना है, उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उनके लिए कुछ करना था। तो लैक ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है ना, प्रॉब्लम क्या था कि केवाईसी नहीं थी, लैक ऑफ था उसमें डॉक्यूमेंट्स में, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब जैसे आईटीआर का प्रॉब्लम आता है, जैसे बैंक में अगर कुछ चाहिए आपको लेना है तो आईटीआर चाहिए, आपका रिटर्न फाइल चाहिए, जो उनके पास नहीं था क्योंकि फाइनेंशियली वो लिटरेट नहीं है। लैक ऑफ फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, उनके पास कोई मॉर्गेज देने के लिए या कुछ रखने के लिए है नहीं, सिक्योरिटी नहीं है। लैक ऑफ रेगुलर सब्सटेंशियल इनकम, है ना, लैक ऑफ रेगुलर सबसे मतलब रोज उतना ही इनकम नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा होता है ना, जरूरी नहीं है मतलब 30 तो कभी कम भी हो सकता है। एन नंबर ऑफ रीजंस है। लो लेवल ऑफ सेविंग, एक तो सेविंग भी उनका लो ही होता है क्योंकि डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। अनेबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिट, और सिक्योरिटी भी नहीं दे पाते। सो दैट इज द चैलेंजेस, दैट्स व्हाई फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सक्सेस भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि वेरिफिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, दैट इज मोर, इट्स अ लीगल वर्क ना, लीगल है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट सक्सेस। So prospective solutions क्या था? What is the prospective solutions? That is for vendors, development of saving a habit, right? So vendors को a number of investment के जरिए सेविंग कैसे करना वो सिखाया, जैसे इंश्योरेंस निकालो, एफडी करो, या फिर आपका मतलब जिससे उनको लोन मिल सके, जिनसे उनका जो लाइफ है वो सिक्योर्ड हो सके। सो फॉर दैट दे डेवलप ऑफ सेविंग हैबिट। नाउ फाइनेंशियल लिटरेसी, फॉर दैट दे ट्रेन देम कि ये कोर्स कर लो, या फिर उसमें कैसे आप अपने आप को लिटरेट कर सकते हो ताकि आपका रिटर्न फिलअप किया जा सके। बेसिक अकाउंटिंग एंड रिसीवेबल एंड सेल्स, राइट, उनको नॉलेज देने मतलब नॉलेज होना चाहिए फॉर वेंडर्स को कि अकाउंटिंग और रिसीवेबल्स, कितना पैसा आया कितना गया, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो बेसिक नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या सॉल्यूशंस है, गवर्नमेंट के लिए क्या सॉल्यूशंस है? प्रोवाइड लीगल स्टेटस बाय इशूइंग लाइसेंस एंड प्रोवाइडिंग हॉकिंग जोन्स, है ना, जो हॉकर्स है उनके लिए उन्होंने एक लीगल स्टेटस या लीगल कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए ताकि उसके बेस पे उनको लोन मिल सके। अब लाइसेंस के बेस पे तो लोन नहीं दे सकते ना, जैसे गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल गया उसके बेस पे लोन नहीं मिलता है ना। बट उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ स्टेटस इशू कर दिया कि नहीं, इनको हम 5 लाख तक का या 2 लाख तक का लोन इशू कर सकते हैं ऑन दैट बेसिस, तो गारंटी चाहिए, गारंटी लेने के लिए भी तो कोई चाहिए। सो देन इंक्लूड वेंडर्स इन सिटी एंड टाउन प्लान्स, राइट, जो भी वेंडर यहाँ पे रह के बिजनेस करना चाह रहा है, सो दे रिक्वायर्ड टाउन सिटी उसने लिया है या सोसाइटी में रह रहा है तो उसका भी, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम लोग किसी का श्योरिटी नहीं ले रहे हैं,
सेटअप सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, कोई सोशली एनजीओ के थ्रू या उनके जो ग्रुप होते हैं उनके थ्रू कुछ कर सकते हैं क्या, है ना, जैसे लेबर का होता है ना, हेल्पर का होता है एन नंबर ऑफ, तो उनका भी कोई ग्रुप है क्या, तो ग्रुप के थ्रू अगर कोई भाई ये हमारे एसोसिएशन का मेंबर है और ये इसका आईडी कार्ड है, ये हम इसे 10 साल से जानते हैं, ऐसा अगर कोई प्रूफ है क्या, ताकि उस बेस पे उसको लोन मिल सके, राइट। सो दैट इज द स्कीम एंड सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस फॉर स्ट्रीट हॉकर्स। नाउ फॉर बैंक के लिए क्या सॉल्यूशंस है, बैंक में क्या करना चाहिए, व्हाट बैंक शुड, सो डिजाइनिंग इनोवेटिव डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस, जो अभी उन्होंने किया ही है ना, कि अभी मतलब लिटरेसी की जरूरत नहीं है आपको, उन्होंने वो दे दिया है फोन पे का, भाई करो, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है आपके अकाउंट में पैसे आए, राइट। तो बैंक ने वो इम्प्रूव किया, क्रिएशन ऑन प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फोकस करने के लिए बोला है, या क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाओ, एम्फेसिस टू एक्सटेंड मोर फाइनेंस टू दिस वेंडर्स अंडर मुद्रा स्कीम, जो हमने कल देखा कि मुद्रा स्कीम के जरिए उनको इंटरकनेक्ट किया गया और उसके थ्रू उनको फाइनेंस किया गया, राइट। एम आई ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, सो व्हाट इज मुद्रा? एसबीआई ने क्या इनिशिएटिव लेके मुद्रा लोन ये किया, तो मुद्रा डेवलपमेंट ऑफ पेपरलेस एंड डिजिटल लोन प्रोसेस फॉर स्मॉल वैल्यू लोन्स अप टू 50,000, ई मुद्रा, है ना, जैसे अभी हम लोग ई करेंसी यूज कर ही रहे हैं, है ना, एक बटन दबाए क्या अमाउंट चला जाता है फोन पे, ये सब ई मुद्रा ही है, सही समझिए। तो उन्होंने क्या किया, लोन अप टू उनको ई मुद्रा के थ्रू, ठीक है बाबा, आप आपने अकाउंट ओपन किया, यू हैव अ सेविंग अकाउंट, नाउ यू कनेक्ट मुद्रा एंड मुद्रा स्कीम, अगर मुद्रा स्कीम में आप आते हो, सो यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 50,000 रुपीज लोन, राइट। सो डीआरआई स्कीम फॉर एससी एसटी, जो अंडर इसमें आते हैं, स्कीम में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए डीआरआई स्कीम दे दी कि क्वांटम अप टू 50,000, टेन्योर जो है 2-3 साल का रहेगा, 2-3 साल तक आपको पे करना है, और 4% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आप उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सिर्फ 3 या 4%, लेकिन वो किनके लिए है, कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए, अदर के लिए 50,000। नाउ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राइट, उसके थ्रू आपको कनेक्ट कर दिया गया कि भाई आप ये अकाउंट ओपन कर लो, या ये पॉलिसी ले लो, ये पेंशन योजना ले लो, तो जिसके जरिए आपको क्या मिले, लोन मिले, है ना। सो एन नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो एंड उसमें लिए उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि 18 to 17 ईयर्स, 18 से लेके हम उसका 12 रुपए पर ईयर रख दिया, कितना रख दिया, 12 रुपए पर ईयर, मतलब एज वाइज है उसमें कि भाई अगर आपका इतना अच्छा स्कीम दिया उन्होंने, देखो मतलब, देन रिस्क कवरेज था 2 लाख का फॉर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, राइट। अभी ये देखिए कि अभी 2 लाख 12 रुपए पर ईयर, अभी इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबने अगर 12-12 रुपए ये भी है, तो कितना सारा मनी कलेक्ट हो गया, है ना, और वो एवरी ईयर के लिए कर रहा है, लेकिन वो 12 रुपए में गवर्नमेंट आपको रिस्क कवरेज क्या दे रहा है, अगर आपका एक्सीडेंट या डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपीज मिलेंगे, और अगर आपके पार्ट बॉडी के पार्ट को कुछ हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उसके लिए 1 लाख का लोन मिलेगा, राइट। तो ये उस स्कीम में था, और भरना है साल का सिर्फ 12, तो कितना फायदा हो गया तो लोगों को। नाउ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी 18 to 50 ईयर्स का क्राइटेरिया रखा, प्रीमियम एनुअल उन्होंने 330 रखा, और इसमें भी लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना था, 330। उनको पता था कि नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट टेकिंग रिस्क, देयरफॉर एसबीआई टेक अ इनिशिएटिव, इसका क्रेडिट एसबीआई को जाता है कि जिसने एसबीआई ने ये स्कीम ऑनवर्ड की, और
स्कीम को अलाउ किया गया और एन नंबर ऑफ लोगों को कोरिलेट किया गया, जिससे पुअर से पुअर भी पर्सन ये स्कीम ले सकता था, क्योंकि 12 रुपए सिर्फ साल का, अगर उसे साल में कुछ भी हो जाता है तो उसको या उसके फैमिली को एक्सीडेंटल केस में 2 लाख मिलेंगे, और अगर उसके पार्ट को बॉडी के कुछ हो जाता है तो 1 लाख मतलब मेडिक्लेम मिलेगा, ऐसे समझिए। और दूसरा जो था उसमें 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर है, जो उसमें 330 पे करना है। समझ में आया? स्कीम समझ में आया एसबीआई का? अभी तो एन Yes, नंबर ऑफ ma'am. बैंक्स में ये चलता है, आप भी इसमें इन्वॉल्व होके निकाल सकते हो, आपके लिए भी है, ये सभी के लिए स्कीम है, ठीक है। नाउ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये क्या था? देखो कितनी सारी स्कीम है। सो कोलैटरल फ्री लोन अप टू ₹10 लाख अंडर PMM स्कीम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 10 लाख का लोन मिल सकता है। कैसे, क्या पैरामीटर? नेचर ऑफ फैसिलिटी, क्या लोन मिलेगा? वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन, राइट। पर्पस क्या रहेगा? बिजनेस पर्पस, कैपेसिटी एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन। मतलब बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए आपको, अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो चाहिए, या फिर बिजनेस को इनोवेटिव करना है तो मिलेगा। टारगेट क्या था लेकिन ग्रुप में? बिजनेस एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर, एक्टिविटीज रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड है आपका बिजनेस तो आपको 10 लाख का लोन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? एग्जिस्टिंग एंड न्यू यूनिट्स, मतलब जो अभी है और जो नए मार्केट में आना चाह रहे हैं उनके लिए। और क्वांटम लोन क्या था? मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 10 लाख 50,000, मतलब 50 से 10 लाख कैटेगराइज है ना। देन लोन फ्रॉम 50,001 to 5 लाख आर कैटेगराइज एट किशोर, मतलब जो एज वाले शिशु के लिए था एक 50,000 तक। देन किशोर के लिए दिया गया, मतलब जो 15 अबव प्लस है। लोन फ्रॉम 5 लाख to 10 लाख कैटेगराइज एज अ तरुण, मतलब जो 21 to 22 है, जो कुछ करना चाह रहे हैं, जिनका बिजनेस उनको करना है एग्रीकल्चर फील्ड में, या नया बिजनेस करना है, नया यूनिट डालना है, उनके लिए ये स्कीम अभी भी है। देन मार्जिन कितना था? 50,000 चाहिए था सिर्फ आपके अकाउंट में 50,000 होना चाहिए। नील पे भी वो दे रहे थे, बट डिपेंड ऑन प्रेस्टीज, ठीक है। नाउ प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लिंक्ड टू MCLR फॉर्म है, वो फिलअप करके दो, उसमें आपका अपडेट करो, देन यू विल गेट अ लोन। कोलैटरल सिक्योरिटी नील, आपको इसमें कोई कोलैटरल देनी नहीं है। टू बी कवर्ड अंडर CGMFMU, राइट, जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें वो कनेक्ट रहेगी। हाउएवर अ प्राइमरी सिक्योरिटी P&M फॉर TL एंड हाइपोथिकेशन, जो भी स्टॉक है, रिसीवेबल है, मतलब जो आपका मटेरियल है ना, जो भी आप ले रहे हो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है, ठीक है। उसके बेस पे वो दे रहे हैं। रिपेमेंट पीरियड क्या है? रिपेमेंट पीरियड उन्होंने वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन का जो 5 इयर्स, 3 से, और उसमें इंक्लूडिंग 3-4 महीने नहीं भी दिया तो कैलकुलेट होगा उसमें आपको मतलब आपका लोन, या फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इट इज, बैंक आपके घर में नहीं आएंगे या फिर सील वगैरह नहीं करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द इनकम जनरेशन। आपका मंथली इनकम कितना आ रहा है उसके बेस से वो डिसाइड करेंगे, राइट। शिशु एंड किशोर MSME के लिए नील है, और तरुण के लिए 0.5% इंक्लूडिंग टैक्स। यस। नाउ अदर कंडीशंस, अभी उनकी कंडीशंस क्या थी देखिए। कंडीशन थी कि द लोन अंडर मुद्रा स्कीम आर गारंटेड बाय क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स। अगर आप ये ग्रुप है ना, क्रेडिट गारंटी ऑफ माइक्रो यूनिट्स से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, लेकिन आपको गारंटी चाहिए। उन्होंने आपकी गारंटी लेनी चाहिए कि यस, हम इस पर्सन को जानते हैं, ये पर्सन हमारे साथ वर्क करता है, या फिर इसका ये बिजनेस है, सो दैट काइंड ऑफ, सो ऑन दैट बेसिस आपको वो लोन मिलेगा। एंड
द सेम इज प्रोवाइडेड थ्रू नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। वहां से भी आपको, या तो आपको वहां से जुड़ना होगा, वहां का मेंबरशिप लेना होगा, वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो देना होगा, तो वहां का भी कार्ड आपको मिल जाएगा। द गारंटी कवर इज अवेलेबल फॉर 5 years एंड हेंस फॉर एडवांस गारंटेड ग्रांटेड अंडर मुद्रा स्कीम द मैक्सिमम पीरियड इज 60 month। ठीक है, 60 month कितना हो गया, 5 years, बराबर है। सो लीड्स आर नाउ अवेलेबल इन उद्यमी मित्र पोर्टल, यहीं पे है। अगर आप ये उद्यमी मित्र में, तो आपको पोर्टल पे जाके देखेंगे, एमएसएमई के पोर्टल पे जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी पीपल कनेक्टेड टू दैट स्कीम। सो साइट कैन बी एक्सेस बाय ब्रांचेस विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी तो आप बहुत सारे बच्चे प्लेस होने को है, या फिर किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एन नंबर ऑफ स्कीम्स है वहां पे। अभी से आप जुड़ जाओगे तो आने वाले 5, मतलब जब जॉब में आपको सैचुरेशन आ जाएगा, तब तक आपका बिजनेस डेवलप होगा और आने वाले सालों में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अभी आप बोलोगे मैं जॉब करता हूँ और जॉब छोड़ के मैं फिर जॉब छोड़ के मैं बिजनेस करूंगा, तो शायद टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो आपका एज है, या फिर जो जो स्कीम अभी मिल रही है वो बाद में मिलेगी कि नहीं वो भी नहीं पता है ना। तो दोनों भी, मतलब बिजनेस और जॉब दोनों भी आप कर सकते हो, क्योंकि स्कीम्स दी हुई है और आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स है वॉट उसको आपको क्या करना है, बनाना है और वहां पे सबमिट करना है। नाउ कंट्रीब्यूशन अंडर मुद्रा लोन, राइट, अंडर दिस लोन एसबीआई हैज डिसबर्स्ड कितना, 5,28 crores, मतलब 5,28 crore to 11 crore to 96 lakhs beneficiaries during last 3 years। मतलब जैसे ही ये स्कीम स्टार्ट हुआ मुद्रा लोन का, तो ये स्कीम में एन नंबर ऑफ जो पीपल थे, विलेजर्स थे, वो इंटरकनेक्ट हो गए। हाउ, कैसे, बिकॉज ऑफ ये स्कीम के जरिए, है ना। जैसे ही उन्होंने मतलब कहा, जैसे हमने ये देखा ना यहाँ पे कि उनके लिए क्या क्या एसबीआई को करना चाहिए था, तो ये जैसे ही प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस आए, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन फेल हुआ था, और ऑन दैट बेसिस पे क्योंकि प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस निकाला, प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस के जरूरी, क्योंकि सर्वे भी जरूरी था कि क्यों फेल हो रहा है। सो ऑन दैट बेसिस उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने से उन्हें पता चला कि क्या स्कीम लाने से लोग जुड़ेंगे, है ना। अभी आपको पता चला कि इंडिया में पैसा है, बहुत पैसा है, बट उसे यूज, सो उन्होंने डिजाइन किया, एन नंबर ऑफ स्कीम निकाले, और स्कीम के जरिए लोग क्या हो गए, जुड़ने लगे। अभी ये उन्होंने क्या किया कि ये जो स्कीम निकाली ना मुद्रा स्कीम के अंडर लोन की, अब आपको भी पता है कि अगर मैं 12 रुपए प्रीमियम भर रही हूँ, है ना, और अगर मिलियन पीपल है, तो मिलियन पीपल को तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलियन का एक दिन में एक्सीडेंट होने से रहा, है ना। एक गांव में 1 या 2 एक्सीडेंट, राइट, अगर उसने प्रीमियम रेगुलर पे किया है ना। और अगर इसमें स्कीम क्या है, एक्सीडेंट हुआ तो ही मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ये भी है। तो एन नंबर ऑफ स्कीम दे हैव लॉन्च। तो अब छोटा था 12 रुपए, तो कोई भी भर सकता था, तो एन नंबर बहुत सारे पीपल कनेक्ट हुए, उन्होंने ये स्कीम को अपनाया, और स्कीम को अपना के फिर उन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया। फिर धीरे धीरे वो लोग अननेसेसरी, मतलब जो भी उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए था उससे वो जुड़ते गए, और बिग लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और वो भी उनको कैसे मिलने लगा, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन, है ना। कौन सा लोन, वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन, जो PMMY में मिल रहा था, जो स्कीम में मिल रहा था, मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना में, है ना। तो अभी भी आप अगर किसी विलेज में जाके इंक्वायरी करते हो, या फिर आप अगर वहां के हो, तो आपको पता होगा कि ये स्कीम है, और बहुत से विलेजेस में ये स्कीम अभी चल रही है। और इन्होंने उसमें क्राइटेरिया भी दे दिया आपको कि क्या क्राइटेरिया पे आपको लोन मिलेगा, राइट। क्या
प्रोवाइड होना चाहिए, एन नंबर ऑफ, राइट? यस, कोई है आप में से जिसे बिजनेस करना है या किसी नहीं है? कोई? सबको पेरेंट्स पैसे देने वाले हैं बिजनेस करने के लिए, राइट? है ना? सही है ना? पढ़ाई के लिए भी पेरेंट्स देंगे पैसे, बिजनेस के लिए भी देंगे, इसको कुछ करना ही नहीं है, राइट? सही है कि नहीं? नितेश, प्रतीक्षा, ओंकार, व्हाट इट इज, व्हाट डू यू से? सही है ना? खुद का फाइनेंस क्रिएट ही नहीं No, करना ma'am. है आपको? इंटरेक्ट हम क्यों नहीं क्रिएट होते हो? करना है। बात क्यों नहीं करते हो? आपको कैसे करोगे? आप मुझे ना आपको एक एक्टिविटी देती हूँ फाइनेंस की, ठीक है? फाइनेंस के इतने सारे क्वेश्चंस हुए, साइबर का हुआ, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो आपको एक एक्टिविटी ऐसी है कि आपको चार्ट बनाने हैं, गवर्नमेंट स्कीम के चार्ट, ठीक है? गवर्नमेंट में क्या क्या स्कीम है रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस, मुद्रा स्कीम, तो आप ऐसे बना सकते हो। मुद्रा स्कीम बना सकते हो, मुद्रा स्कीम का एक चार्ट बना सकते हो, माइक्रो फाइनेंस का चार्ट बना सकते हो, ठीक है? नाबार्ड में क्या क्या स्कीम है उसका चार्ट बना सकते हो। तो ये मुझे चार्ट चाहिए और फिजिकली आके देना है, एक वीक में चाहिए। गॉट इट? यस और नो? यस मैम। कितने लोग देने वाले हैं? अच्छा, कल कौन कौन आ रहा है ट्रैकिंग के लिए? हेलो, कोई नहीं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं क्या मैडम आप, राइट? और कौन सी स्कीम है, एनी आइडिया? जयश्री, जयश्री आहे का इकडे? प्रतीक्षा, नहीं आज जयश्री ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं सबको किया मैम। नहीं किया, ओके। सो सिर्फ ठीक है, आप कोर्सेस कर रहे हो, नए नए इसमें जा रहे हो, दैट इज गुड, बट अपना भी कुछ करो। सिर्फ उसी में ही अपना ये मत रखो कि नहीं ये बिजनेस करने से या ये कोर्स करने से मुझे जॉब मिलेगा, नहीं। आपके पास स्किल है, उसको डेवलप करो, है ना? स्किल डेवलप करने से ही आप बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज जॉब में तो है ही, ठीक है, जॉब कर रहे हो, सीख रहे हो, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट इज गुड, राइट? बट डू समथिंग, ठीक है? तो एक एक्टिविटी मैंने दे दी आपको, वो आपको सबमिट करना है चार्ट फिजिकली आके। सेकेंड सेकेंड जो एक्टिविटी है वो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है? मे बी वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है? मतलब लेक्चर होने के बाद। तो बी प्रिपेयर रिटर्न टेस्ट के लिए, और वो भी फिजिकली आके देना है, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? हम टेस्ट मतलब प्रिपेयर कैसे करना पड़ेगा मैम? कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स। ओके मैम। 50 50 ओके मैम। ठीक है? तो आपको रिटर्न की प्रैक्टिस तो होगी, है ना? फाइनेंस का सारा मतलब जो साइबर लॉ का होगा, फाइनेंशियल लॉ का होगा, करंट ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल केस का होगा, ये तीनों भी आपके होंगे 50 मार्क्स के रिटर्न टेस्ट। सो बी प्रिपेयर। यस, एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? और मैम जो हमारे फाइनल एग्जाम होने वाले हैं वो कितने मार्क्स के होंगे मैम?
जो जितने अभी तक होते आ रहे हैं उतने ही मार्क्स थे। क्या मेरा 80 टर्न होगा मार्क्स। इस बार तो 80 हाँ? मार्क्स का 80 हाँ। मार्क्स का होगा मैम। ओके मैम। प्रैक्टिस है कि नहीं लिखने की? स्टार्ट किया मैंने, जब सीसी लिखता हूँ तो उसके साथ थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ उसके साइड में, तो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया मैम। ओके, सीसी लिख लिए ना, चालू कर दिया। इस बार कोई ये होने वाला नहीं है, फटाफट अपने अपने सीसीज आप लिख लीजिए, ठीक है? ओके मैम। और एनीथिंग एल्स? नो? और अदर्स को भी बताइए कि ये सारी चीजें होने वाली है, हो रही है, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए, राइट? ओके देन, सी यू, बाय बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। यस।